Hello, good morning, FIBCom students. Good morning, Oh, ma'am. good morning. Okay, so shall we start? Shall we start? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So today I am going to teach you that unit number 2, part B, part second. That part 1 is over. Okay, the social class and upper class and something were that na that was over. Today I am going to start the new chapter, unit number 2. Okay, can you see the slide properly, all of you? Yes, Can ma'am. Okay. So the next slide, see there. Gender disparity. Gender मतलब क्या? What is the meaning of gender? What is the Male and female. Okay, the data between or the comparison between male and female. Disparity means differences. Okay, so patriarchy is the system of the society in which the father or the eldest male is the head of the family. The male child maintains the family continuity. So, in our Indian society, that it is called, or we can see the patriarchy society where the father or the eldest male is the head of the family and he continues or he maintains the family forever. Understand? Patriotic assigns the characteristics to the people on the basis of gender. Males are supposed to be superior to the females. So we can hear this. The males always are superior than the females. What we consider in our society. ओके कि जैसे हमारे भारतीय संस्कृति और भारतीय जो हम बोलते हैं कि भारत में हमको दिखाई देते हैं कि पुरुष प्रधान जो संस्कृति या पुरुष प्रधान हमें जो समाज दिखाई देता है वहाँ पे आपको ये पैट्रियार्टिक सोसाइटी या ये जो हम बोलते हैं कि डिस्पेरिटी बिटवीन जेंडर एंड फीमेल मेल एंड फीमेल ये आपको ज़्यादा दिखाई देगा. They are expected to look after the family's economic needs because they have given the task to complete the economic needs of the family. That women have the task of bringing up the children and carrying out the household things or household tasks. That as the males are given the task for economic needs, the same way the women have given the task to bear and bringing up the children and carrying out of the household tasks. कि जैसे हर जगह पे हमें हर घर में हर कास्ट में हमको दिखा देता है कि जो पुरुषों का काम है वो पुरुषों का काम क्या होता है पैसा कमाना और जो औरतों का काम है वो क्या होता है कि हाँ बच्चे पालना घर की देखभाल करना घर के सारे काम करना ये औरतों का काम होता है. Their place is within the four walls of the houses means when we are talking about that women they have given the task only within the four walls of the houses. Until the century ago women did not have the right to vote. कि कुछ सालों पहले की बात करें तो औरतों को और महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी उनको वोट देने का भी हक नहीं था. In the Britain, women got this privilege in 1980 and in the USA in 1990. So whenever in the Britain it start, the women were voting in 1918 and in USA in 1919. Even today, in several Muslim countries, women are denied many privileges. Okay, so whenever we are talking about the minority communities, that women are suppressed there, most probably, if you don't mind, those who are listening, and that is the reality. For example, Saudi Arabia, a woman who is the victim of the rape gets harsh punishment instead of justice. कि सऊदी अरेबिया में भी कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई महिला पे रेप हुआ है तो उनको जस्टिस या न्याय मिलने की न्याय देने की वजह से या न्याय तो नहीं देते लेकिन उनको ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट दिया जाता है. ओके तो ये अभी हम जब समाज में या न्यूज़ में या समाचार में या बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं कि लड़कियों पे रेप होता है. जेंडर डिस्पेरिटी हमको बचपन से ही सिखाई जाती है. यस और नो कि जैसे आई थिंक मैंने ये पॉइंट आपको क्लियर किया था. यस और नो वरुण आवाज आ रही है.
Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. जैसे मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर किया था कि बचपन से ही हमें टास्क दिया जाता है, ये काम लड़के करते हैं, ये काम लड़कियां करती है, ये काम फॉर एग्जाम्पल बैंक का काम हो तो जल्दी जल्दी से जल्दी जब बाहर का काम हो, कोई बाजार में जाना हो तो लड़कों को जल्दी भेजा जाता है, लड़कियों को नहीं भेजा जाता है। अगर बैंक का भी काम हो या कुछ भी काम हो तो लड़कियों को वहाँ पे ज़्यादातर अलाउ नहीं किया जाता। और कुछ माइनॉरिटीज में तो गर्ल का सिर्फ या औरतों का तो सिर्फ यही स्थान है, बच्चे पालना, बच्चे पैदा करना और घर के चार दीवारी में रहना, उसके अलावा उनका कोई भी स्थान नहीं है। और दूसरे कास्ट में भी ऐसा ऐसा होता है, लेकिन जितना ज़्यादा डिस्पैरिटी होगा उतना वो डिस्टर्बेंस आपको मेल एंड फीमेल में ज़्यादा दिखाई देगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए आगे का पॉइंट। In spite of the discrimination against women, some women have attained a high position in the political and other areas. कि जब जितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो उसकी वजह से क्या है, अभी तो एक चैलेंज महिलाओं के लिए हो गया है। तो कभी कभी महिला ऐसा दिखाई देती है कि पॉलिटिक्स में भी उनका हाई पोजीशन है और सभी फील्ड में अभी महिलाएं हमको काम करते हुए दिखाई देती है, तो उनकी हायर पोजीशन दिखाई देती है। In the political sphere, as many as the 76 women have become the prime minister of their countries. कि जैसे हम पॉलिटिक्स की बात करें तो 76 कंट्रीज में the women became the prime minister of their particular countries. The most noteworthy females who became the heads of their countries are मार्गरेट थैचर, यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे नाम दिए गए हैं। मार्गरेट थैचर यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे। देन इंदिरा गांधी हमारे इंडिया के, श्रीमारा बंदर नाइक श्रीलंका, श्रीमारा बंदर नाइक वो श्रीलंका के थे। गोल गोल्डा मेर इज़राइल, गोल्डा मेर इज़राइल तो ये सऊदी अरबिया के थे। बेनाजिर भुट्टो पाकिस्तान के थे। खडेला जिया बांग्लादेश के थे। तो ये हमको कुछ पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं, तो ये नाम आपको याद रखना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? डू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? यस और नो? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Some of the women who have done Yes, other ma'am. fields, just like यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। इंदिरा नोई इज द चेयरपर्सन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द पेप्सी कोऑपरेटिव। तो ये इंदिरा नोई है, वो चेयरपर्सन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पेप्सी, जो हम पेप्सी वगैरह पीते हैं उसके वो चेयरपर्सन है। देन लैला शेख वॉज द फर्स्ट वीमेन हेड ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जितना सबसे पहले जो हाई कोर्ट बना था, तो सॉरी हाई कोर्ट था, तो उसमें लैला सेठ वो सबसे पहले जज थे, हेड ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। ओके, सो इफ आई गोइंग टू गिव द एग्जांपल, मोर एग्जांपल, देन if you have seen that Dangal movies and Panga movies, just like that, that in that women are also achieving the more higher position in what we can say in the play games also. Okay, in the games also. So it is not any field right now in the recent time that women don't have achieved, कि अभी आपको दिखाई देता है कि सभी फील्ड में महिलाओं का योगदान ज़्यादा हो रहा है। यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. बहुत सारी ऐसी फिल्म रहते हैं कि मैं आपको फिल्म का एग्जाम्पल क्योंकि वो जल्दी से आपको समझ में आता है, आप देखते भी होंगे शायद, या आपको समझ में जल्दी से आ जाता है। तो दंगल मूवी में भी ऐसे कुछ आपको ऐसा दिखा देगा कि जो गांव बताया था वो बिछड़ी जाति का या इतना वेल डेवलप गांव नहीं था। तो उसमें भी वो जो हम बोलते हैं कि बाप का जो कैरेक्टर निभाया है, उन्होंने जो अपनी दो लड़कियों के लिए किया, ऐसा तो हार्डली ऐसा कोई रूरल एरिया में करता है, ऐसा आपने देखा होगा। फिर उसके बाद जो एक पंगा मूवी आई थी, उसमें जो एक कैरेक्टर निभाया कि शादी के पहले का जो लड़की का जो लाइफ होता है और शादी के बाद जो लड़की का लाइफ होता है, उसमें वो डिफरेंस बताया गया है कि कहाँ कहाँ महिलाओं को कुछ कितना सहन करना पड़ता है, ये आपको तभी पता चलता है। ये तो सिर्फ मूवी के एग्जाम्पल, बट रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल के जिसको हम नहीं जानते, या हमारे आसपास, या हम अपने मदर को ही ले ले तो हमें वो इतना एक बेस्ट एग्जाम्पल हमको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am.
Okay, Yes, अगला ma'am. पॉइंट इफेक्ट्स ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी ऑन वीमेन। तो अभी जेंडर डिस्पैरिटी हमको कहाँ कहाँ पे दिखाई देती है? अगर महिलाओं के साथ जेंडर डिस्पैरिटी किया जाता है तो उसके पॉइंट्स क्या हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द वीमेन, दूसरा है प्रॉब्लम फॉर वीमेन एट वर्क, तीसरा है डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। तो ये 4 पॉइंट्स हम डिटेल में देखने वाले। वी आर गोइंग टू सी दिस ऑल दिस पॉइंट इनटू द डिटेल। सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द वीमेन। सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द वीमेन मीन्स क्या? आपको थोड़ा सा आइडिया है अभी उसके बारे में? क्या बताना चाहते हैं सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ वीमेन? क्या बताना चाहते हैं उसमें? आइडिया है थोड़ा सा? यस और नो? हेलो, हाँ मैम। क्या बताया उसमें? हाँ यस मैम। क्या बताना चाहते हैं उसमें? थोड़ा सा आइडिया होगा ना, क्या बताना चाहते हैं उसमें? क्या बताना चाहते हैं? ये टाइटल देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या बताना चाहते हैं उसमें? क्या बताना चाहते हैं उसमें? आपकी मम्मी को आप रोज देखते हैं? रोज देखते हैं? Yes, yes, ma'am. ओके, आपसे पहले उठती होंगी यस शायद? ओके, मैम। सब कुछ काम करते Yes, होंगे, सबका ख्याल रखती है? यस और नो? सबका ख्याल रखती है yes, ना? ma'am. पूरा लाइफ उसका कैसा है? आपके साथ जुड़ा हुआ है ना, आपके फैमिली के साथ? हाँ यस और नो? मैम. हाँ, लेकिन Yes, हम उनका कितना ख्याल रखते हैं? सही में रखते हैं उनका ख्याल? रखते हैं. रखते हैं, पर कितना परसेंट? जैसे बोले कि 50%, 60% कि 100%? कितना ख्याल रखते हैं? कितना ख्याल रखते हैं? 50-60%? एम आई राइट? आंसर यही होगा। एम आई राइट ना? Yes. फिफ्टी सिक्सटी Yes, Yes. परसेंट ma'am. 100% नहीं रखते हैं, 100% नहीं रखते हम लोग। हाँ, रखते हैं ख्याल, ख्याल जरूर रखते हैं, लेकिन उसका 100% नहीं देते। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके घर में आपको क्या ज़रूरत है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी छोटी छोटी हर चीज़ों का आपका ख्याल रखना, आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है उसको पता रहता है, क्योंकि घर के हर एक मेंबर से वो जुड़ी हुई रहती है। उसका ज़्यादातर वक्त, इफ़ शी इज़ हाउस वाइफ देन शी मोस्ट प्रोबेबली इन्वॉल्व इन द किचन, किचन में ज़्यादा रहता है। ओके, तो किचन में उसका वक्त चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उसकी आदतें, शादी के बाद उसकी आदतें भी बदल जाती है, बच्चे होने के बाद पूरी वो बदल जाती है, उसका बॉडी से लेके उसका माइंड सेटअप पूरा चेंज हो जाता है। तो ये सब कुछ ख्याल करते करते हमको और घर वालों को उसका पता नहीं रहता कि उसको क्या ज़रूरत है, उसको क्या ज़रूरत है, ये कभी भी नहीं। अगर आप किसी महिला को या स्त्री को पहचाना चाहते हैं, प्यार से उसको पहचानेंगे, तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आएगी। लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि प्रैक्टिकली या व्यवहार से उसको सोचा जाए या दिमाग से उसको सोचा जाए, व्यवहार से नहीं दिमाग से उसको सोचा जाए, तो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जो हम बोलते हैं कि जो स्त्री का जो प्रेम होता है या माँ का प्यार होता है या बहन का प्यार होता है या बीवी का प्यार होता है, एक नदी की तरह रहता है, पूरा बहता ही रहता है, पूरा बहता है। क्योंकि ये डिफरेंस हमें समाज में हर घर घर में दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल सबको, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगी कि अभी कोविड-19 में सभी घर पे थे, हम सभी घर पे, एम आई राइट? बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी घर पे है। यस मैम। ओके, Yes, ma'am. लेकिन उसने कभी छुट्टी लिया क्या? उसने कभी छुट्टी लिया? नो मैम नहीं। नहीं। अगर आप No, सोचे कि ma'am. अगर कभी नहीं। कभी नहीं, ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल आप सोचे कि अगर वो एक दिन बीमार हो जाती है तो पूरा घर कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? एक दिन वो सुना बीमार, सुना रहता है। सुना सुना होता है. सुना सुना होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, सबको अपनी अपनी चीज़ें खुद ढूंढनी पड़ती है, सबको अपना अपना खुद देखना पड़ता है। फिर क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ी सी चिड़चिड़ हो जाती है, पता नहीं यस कहाँ मैम। रख दिया, क्या रख गए, क्या रख दिया, हाँ मैम. ऐसा सब कुछ होता है। तो वो ख्याल करने वाली, जैसे हम बोलते हैं ना, दूसरा आपको एक एग्जांपल दूँ तो, कि जैसे पिता के बिना जीवन अधूरा है, वैसे स्त्री के बिना या माँ के बिना घर अधूरा रहता है।
कि पिता होता है वो भी इतना ही मेहनत करता है, आपको पालता है, पोसता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत पैसे कमाते हैं। अगर खुद के फटे हुए कपड़े होंगे तो भी नहीं बताएंगे, फटे हुए जूते होंगे तो भी नहीं बताएंगे, क्योंकि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, सबको अच्छा देना है। लेकिन माँ का कैसा होता है, पूरा दिन आप में, क्या मेरे बेटे ने कुछ खाया है, मेरे बेटी ने कुछ खाया है, वो कॉलेज से आया है, अगर उसने कुछ खाया भी होगा नहीं, तो आपके जाने से पहले, फॉर एग्जाम्पल जब आप स्कूल की बात करते हैं, अभी तो आप घर पे ही है, लेकिन हम जब स्कूल की बात करके आप घर को, स्कूल में से कॉलेज, सॉरी, स्कूल में से आप जब घर पहुंच जाते थे तो आपको खाना रेडी मिलता है, यस खाना मैम। रेडी, हाँ, कि आपके आने के हाँ नहीं बाद मैम। वो मैम। खाना बनाया जाता है, आपके नहीं आने के, मैम, नहीं, खाना पहले नहीं, रेडी मिलता है। खाना नो रेडी मैम, मिल, खाना रेडी हाँ, होता है। खाना रेडी होता है, क्योंकि उसको वो सोच, ये जो हम बोलते हैं ना सेंसिटिवनेस, जो हमें फीमेल में ज़्यादा दिखाई देती है, तो वो कहीं ना कहीं वो बहन के तौर पे या बीवी के तौर पे या फॉर एग्जांपल फ्रेंड के तौर पे जितना वो केयरिंग होते हैं ना, उतना मुझे, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ ही मर्द इतना केयरिंग होते हैं ज़्यादातर, कि मोस्ट प्रोबेबली इतना केयरिंग मर्द नहीं होते हैं। ओके, सिर्फ अपना मतलब निकला, ठीक है, काम हो गया, ठीक है, और कुछ नहीं। बहुत कम मर्द होते हैं। जैसे आप अभी से सीखिए कि केयर किस किस तरह से की जाती है। हाँ, केयर किस तरह से की जाते हैं, सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड के लिए नहीं है, अपनी बीवी के लिए नहीं, लेकिन सबके लिए, जो आपकी बहन है, माँ है, जो आपको सालों से आपके साथ जुड़ी हुई है, बीवी के साथ भी उतना ही जस्टिफाई करना चाहिए, माँ के साथ भी उतना ही जस्टिफाई करना चाहिए, और बहन के साथ भी उतना जस्टिफाई करना चाहिए। तो ये हमको, ये कुछ बातें होती है कि हमको सीखने को मिलती है। ओके, हैव यू सीन बागबान मूवी? हैव यू सीन, हैव यू सीन बागबान मूवी? यस और नो? देखा है बागबान, नो देखा मैम। है बागबान, हाँ देखिए। मैम। हाँ, उसमें क्या बताया कि नहीं मैम। उसमें हाँ मैम। उसमें ओके, देखा है, नहीं देखा है, लेकिन आपको उसमें से जो ये हम जो मूवी देखते हैं, तो उसमें से हमको क्या अच्छा, जो क्या है कि जो हस्बैंड वाइफ का जो प्यार होता है, तो सिर्फ वो फिजिकली नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए कि उसमें फॉर एग्जांपल केयर किस तरह किया जाता है, रिस्पेक्ट किस तरह किया जाता है एक दूसरे के लिए, कितना छोटी छोटी, जिस हिसाब से कोई भी छोटी छोटी चीज़ का उसके बारे में हम ख्याल रखेंगे, तभी कोई चीज़ हमको वो सामने से मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को प्यार देंगे, तो वो सामने से आपको क्या देगा, प्यार देगा। एम आई राइट? प्यार देगा ना। कि अगर आप किसी को नफरत दे रहे यस तो, मैम। अगर आप किसी को नफरत दे रहे तो सामने से आपको क्या मिलने वाला है, नफरत ही मिलने वाला है। क्या नफरत। नफरत मिलने वाला है। ओके, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल अभी की जो एक दो 2 साल पहले या 1 साल पहले बहुत ही अच्छी मूवी, ये जो जेंडर डिस्पेरिटी हमको दिखा देते ना, उसका बेस्ट एग्जांपल मर्दानी, शायद रानी मुखर्जी की मूवी है, आपने शायद देखा पार्ट 1 यस पार्ट 2, मैम। बहुत ही अच्छी मूवी है, कभी टाइम मिले तो ज़रूर देखिए। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में है कि कुछ जगह पे स्त्रियों को या महिलाओं को किस तरह से उनको मारा पीटा जाता है, किस तरह से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। दूसरा एक अच्छा मूवी है कि थप्पड़। आपको ऐसा लगता है मैडम इतनी सारी मूवीज़ देखते हैं? नहीं, कभी टाइम मिला तो देखते हैं, नहीं तो वो एक ऐसा टाइटल पे से समझ में आ जाता है कि उसमें थीम क्या है, या थीम समझ में आ गई तो वो समझ में आ जाता है कि हाँ, पूरा इतना देखने का टाइम नहीं होता है मुझे, लेकिन वो थीम पे से या टाइटल पे से समझ में आता है कि हाँ, उसमें क्या बताने वाले हैं, उसमें क्या हो सकता है। तो ऐसा कुछ हमको दिखा देते हैं। ये मूवी ज़रूर देखिए आप। ओके, आगे का देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कभी सोशल प्रॉब्लम ऑफ वीमेन इन इंडिया, भारत में जो स्त्रियों का हम बोलते हैं सामाजिक स्थान क्या होता है, वो हम देखने वाले हैं। मैरिज एज अ लाइफ लॉन्ग स्लेवरी, ऐसा रेयर केसेस में होता है, मोस्ट प्रॉब्ली केसेस में होता है, लेकिन रेयर केसेस में ऐसा नहीं होता है। इन द मोस्ट केसेस, इवन इन द डबल इनकम नो किड्स फैमिली in India, at least the wife works both in office and at home. कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्किंग वूमेन है, ओके, वर्किंग वूमेन वर्क्स ऑल्सो एट ऑफिस एंड द वर्किंग वूमन वर्क्स ऑल्सो एट home. For example, if she doesn't have any household work, if she doesn't have any household task, but though she has to cook, she has to cook. Am I right? समझ में आ रहा है? Do you understand? Do you understand? Yes or no? Yes, ma'am. मैंने क्या Yes, बोला? ma'am. For example, though the husband and wife both are working, but some works
is already given to the women। कि जैसे खाना बनाना है, वो अगर बड़ी ऑफिसर है या बड़े पद पे हैं, तो वहाँ पे जितना ऑफिस में वो काम करते हैं, तो घर में आने के बाद उसको कोई हाउस होल्ड वर्क नहीं करना है, मेड रखा है घर पे, तो बाकी का सब काम कर दिया होगा, लेकिन खाना तो उसको बनाना ही पड़ता है। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल आगे देखिए, फर्दर द गंगा, वन ऑफ द नेम ऑफ द मेड, ओके, क्लीनिंग वुमन इज एब्सेंट, द मेल महाराजा वॉचेस टीवी while the wife washes dishes। इतना हमको ये ऑलरेडी समझ में आता है। ओके, इफ मेड इज नॉट कमिंग, दैट वाइफ इज वर्किंग, एंड महाराजा मीन्स द मेल पर्सन वॉचेस टीवी। इतना होता है कि नहीं होता है सबके घर में? होता है कि Yes, नहीं? ma'am. So that is the thing। Okay, dowry. Getting dowry is a male privilege with the marriage apart from becoming a lifetime laborer। The woman brings with herself her lifelong maintenance। तो डाउरी मतलब क्या? डाउरी का मतलब पता है? डाउरी का मतलब पता है? What is the meaning of हाँ डाउरी? मैम। डाउरी का मतलब होता है दहेज देना। दहेज कि किसी कास्ट में, फॉर एग्जांपल, या पर्टिकुलर कास्ट में दहेज दिया जाता है, दहेज दिया भी जाता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से, या जैसे हम जितना एजुकेटेड है उसके हिसाब से, तो लड़की का लेन देन हो जाता है। जब हम दहेज लेते भी है और दहेज देते भी है, तो लड़की का लेन देन हो जाता है। अभी डाउरी नहीं, अभी इस रिसेंट टाइम में वी यूज दिस टर्म इन द डिफरेंट वे, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी मीन्स क्या देना है आपको, क्या पैसे वाले हैं, लड़की के पिता पैसे वाले हैं और लड़का मिडिल क्लास फैमिली में से है, तो वो सामने से पूछते हैं कि हमको क्या देना है, क्या फॉर्मेलिटीज आपने, क्या देना चाहिए। सो in the rare way, this dowry system is not prohibited। कि कितना भी रोकने की कोशिश करे फिर भी रुकती नहीं है। ये डाउरी देना मीन्स दहेज देना, और दहेज लेना एक गुनाह है। तो यहाँ पे जैसे हम, ऐसा होता है कि लाइफ टाइम एक लेबरर लेके आते हैं, इतना दहेज लेके आई है, फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर कास्ट में, उस कास्ट का नाम नहीं लूँगी मैं आपके सामने, कि ऐसे मैंने एग्जाम्पल्स देखे हैं। अगर शादी हो गई है, कुछ भी नहीं लाई ये लड़की, तो फिर लड़कियों को, जो हम बोलते हैं ना वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, उसका वो शिकार हो जाती है। लड़कियों को मारा पीटा जाता है, बहुत काम करवाया जाता है, मशीन की तरह काम करवाया जाता है, बच्चे पैदा करते, उसका कोई भी स्थान नहीं, मीन्स लाइफ नॉट बिगिंस, लाइफ एंड्स देयर। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? ये पॉइंट समझ Yes, में आ रहा ma'am. है? ओके। हाँ मैम। Yes, ma'am. Further, the practice of dowry is found in love marriages also। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरेंज मैरिज में डाउरी दिखाई देता है, लव मैरिज में भी डाउरी दिखाई देता है। तो आपके हिसाब से जितना आप पढ़ोगे, जितना आप अच्छे से ये प्रैक्टिकली जब आप अप्लाई करोगे, ये पॉइंट हमको, ये थियोरेटिकल पॉइंट है, लेकिन जब आपका शादी होगा या कुछ भी होगा, तो दहेज लेना भी मत और दहेज देना भी मत। तो ये जब हम पॉइंट सीखते हैं, कि उससे फॉर एग्जांपल आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि अगर एक पिता को 5 बेटियां हैं, तो दहेज देना है, उसके पास पूरा वो पिता बिक जाता है। शायद आपने ये केसेस नहीं देखे होंगे, पूरा पिता बिक जाता है मीन्स उसके पास जो कुछ भी होता है वो बेच देता है, या समाज के सामने अपनी इज्जत रखने के लिए इतना खर्चा करता है, कहीं से भी उधार लाता है, फिर उसका ब्याज पे ब्याज वो जो चढ़ता जाता है, उसका ब्याज वो भरने के लिए वो अक्षम हो जाता है। बेटा नहीं है, लड़की आई है, और कभी कभी तो ये जो हम बोलते हैं ना IMR, इन इन्फेंट मोरालिटी रेट, की लड़कियों की हत्या पास में क्यों होती थी, उनको जन्म देने के बाद उनको क्यों मार डालते थे, तो वन ऑफ द रीजन ऑफ डाउरी, कि दहेज प्रथा की वजह से भी लोग उनको मार डालते थे। और मोस्ट प्रॉब्ली जो पास्ट से लेके प्रेजेंट तक अभी जो डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है, जेंडर डिस्पेरिटी, वो महिलाओं पे ज़्यादा अत्याचार हमको होते हुए दिखाई देता है। Do you understand this point properly? Yes, ma'am. Okay, आगे का point देखते हैं। Neglecting the girl child, the most common method of obtaining higher rate for girl children is neglecting them during the early childhood। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बचपन में ही अगर
जैसे पता चले कि गर्भ में लड़की है या प्रेग्नेंट है तो वो लड़की है, तो पहले सोनोग्राफी होती थी, अभी भी सोनोग्राफी होती है, लेकिन पहले सोनोग्राफी होने के बाद लड़कियों को गिरवाया जाता, लेकिन दिस सिस्टम इज ऑलरेडी बैन, but in some cases, rare cases, it is going to be done, and if they caught, they are going to be punishable. कि अगर ये सिस्टम जैसे मैंने अभी बोला कि सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कि हम बोलते हैं उसको लड़की है या लड़का है, वो देखने का कि फॉर एग्जांपल आपको हॉस्पिटल में कभी कभी आप जाते होंगे किसी के साथ, तो वहाँ पे ऐसा बोर्ड लगाया हुआ दिखाई देता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट नहीं होगा, अगर होगा तो उसको इतना इतना पनिशेबल किया जाएगा, जो व्यक्ति करेगा उस डॉक्टर को भी और उस व्यक्ति को भी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, दूसरा है nearly half of the all female deaths in rural राजस्थान are the girls below the age of 20। कि शायद आपको पता हो कि राजस्थान का जो ऊपर हम जो बोलते हैं उत्तर भारत में महिलाओं की स्थिति सिर्फ हम देखें कि कुछ रूरल एरिया में, दिल्ली की बात नहीं कर रहे, रूरल एरिया में भी जो राजस्थान में है उनको 20 से ज़्यादा 20 का जो साल है 20 के साल के नीचे की लड़कियों की ज़्यादा हत्या वहाँ पे दिखाई देती है। कि फॉर एग्जांपल बिहार हो या बहुत सारे ऐसे रोज़ के केसेस हम देखते हैं कि लड़कियों पे गैंग रेप होता है, और जैसे फॉर एग्जांपल निर्भया, जिसे मैं आपको एक एग्जांपल दिया था। ओके, उसको तो वो लड़की तो मर गई, लेकिन उसके जो लड़कों ने उस पर रेप किया था उसको फांसी लगने में 7-8 साल लग गए, हमारे शायद आपको ये केस पता होगा। Yes, ma'am. ओके, तो Yes, Yes, कितना ma'am. ma'am. देखिए, Yes, ma'am. जो रेप Yes, करता ma'am. है, जो गंदी तरह से गंदी नज़र से लड़कियों को देखता है, वो खुलेआम घूमता रहता है, और जो लड़कियां होती हैं जिस पे रेप हुआ है तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए अंदर अंदर जो घुटती रहती है वो घुटन से ही मर जाती है, या मेरे माँ बाप को क्या बोलेंगे। कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी का जो यंगस्टर है, मैं आपका सिंपल एग्जांपल देती हूँ, यंगस्टर जो अभी का जो है, तो लड़कियां भी हर जब हम खुद बदतमीजी नहीं करेंगे तभी हम दूसरों को बदतमीजी नहीं करने देंगे, लेकिन हम खुद जब बदतमीज होंगे तब हम दूसरों को बदतमीजी नहीं तमीज नहीं सिखा सकते। कि फॉर एग्जांपल लड़की को देख के सीटी बजाना, उसको छेड़ना, ये गुनाह है। गुनाह तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये अच्छा काम नहीं है। अच्छा काम है क्या? अच्छा काम है? No, ma'am. No, नहीं. ma'am. नो। Ma'am. रिस्पेक्टफुली देखना, नो मैम। रिस्पेक्टफुली बात करना लड़कियों से, तो आप जितना रिस्पेक्टफुली लड़कियों को भी मैं बता रही, जितनी लड़कियां भी सुन रही हैं, रिस्पेक्टफुली अपनी मर्यादा में रहना, कौन से ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, फैशन करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। वी आर नॉट ओल्ड जनरेशन, मैं वही बता रही हूँ, लेकिन जितना आप ओवर फैशनेबल होते हो तो उसका जिम्मेदारी आप पे खुद पे बढ़ जाता है कि आप अपनी सुरक्षा का कैसे कर सकते हो। समझ में आ रहे हैं? ओके, तो बहुत सारे ऐसे दो तरफ के हम बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि दो हाथ से ताली बजता है, तो वैसे ही हमको रिस्पॉन्स दिखाई देता है। कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं कि या ये जो आपका जो एज है अभी का, इतना चंचल होता है कि समझ में नहीं आया कि कौन सा सही और कौन सा गलत। अगर आपको किसी ने फुसला भी दिया तो भी आपको समझ में नहीं आता है वो मेरा अच्छा है वो मेरा जो, लेकिन आपको डांटते हैं, जो अच्छी तरह से आपके साथ दिल से बात नहीं करते लेकिन आपका भला चाहते हैं, वो आपको जल्दी से समझ में नहीं आता कि क्या कौन मेरा अच्छा कर रहा है कौन मेरा बुरा। कि जैसे आप मैंने अभी बोला कि आप ऐसे कुछ मूवी देखिए जिससे आपको रियलिटी का पता चलेगा कि लड़कियों की हालत क्या होती है, लड़कियों को किस तरह से संभलना चाहिए, या कहाँ पे अपनी सुरक्षा के लिए, या लड़कों पे भी रेप होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, लड़कों को भी रेप होता है। तो खुद को संभाले रखना इस टफ टाइम में बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। खुद को हम बुरी आदतों से, बुरी लोगों से, बुरे व्यक्ति से किस तरह से बचाएं, हमको हमारा हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? पर समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, उस पर लेक्चर नहीं दूंगी, लेकिन आप खुद लेकिन खुद आप खुद अप्लाई करेंगे आपके लिए क्या सही और क्या गलत। मैं आपको नहीं बता सकती ये मत करो, इससे बात मत करो, इससे
आपका पर्सनल लाइफ है, आपको पर्सनल लाइफ जीना है, पर कैसा, किस तरह से, कौन सा चीज़ बोलना चाहिए, किस तरह से बात करना चाहिए, ये हमको पता होना चाहिए। आगे का देखते हैं, लो स्टेटस ऑफ सिंगल वुमेन, कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ वीमेन if woman remains unmarried, she is considered inferior. अगर कोई लड़की की शादी नहीं हो रही है, वो सिंगल ही रहना चाहती है, वो शादी करना भी नहीं चाहती, कि जिसकी फॉर एग्जांपल माँ बाप हैं, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, ना भाई है ना बहन है, सिंगल चाइल्ड एंड सिंगल पेरेंट, तो उसके माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो शादी नहीं करती, तो उसको क्या समझ में क्या स्थान मिलता है? उसको inferior, she is considered as a inferior. If she attends the party or goes to the movies alone, the people doubt her character. Yes, कि अगर वो पार्टी में जाती है, मूवीज में मूवी देखने के लिए एक अकेली जाती है, तो पीपल डाउट हर कैरेक्टर। ओके, फॉर एग्जांपल अगर किसी वजह से, कि फॉर एग्जांपल जैसे हम वर्किंग वूमन हैं, तो मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल रात भर काम करना पड़ेगा, तो फिर समाज वाले ऐसा कौन सा काम था कि आपको रात भर वो काम करती थी? कोई भी लड़की हो, अगर वो वही काम जो पुरुष ने किया हो, तो वहाँ पे उसको कैसे बोले, हाँ बेचारा थक गया था, बहुत काम करके आया है। तो ऐसा कुछ सिनारियो हमारे समाज में दिखाई देता है। अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहनती, पर वो हम बोलते हैं ना बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, कि बोल्ड भी इतनी है और ब्यूटीफुल भी है, तो फैशन ज़्यादा करते, तो फिर भी उसको हम उसके कैरेक्टर को नाम रखने के लिए पीछे नहीं हटते। वो किस किस तरह, मीन्स इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी ये है, उसके फिगर पे कमेंट किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, फिर भी हम सोचते हैं कि अभी ये उसका कैरेक्टर कैसा होगा। लेकिन सभी, हम बोलते हैं कि सभी दुख, क्या बोल सकते हैं कि पहले अपना कैरेक्टर जानिए, अपना कैरेक्टर देखिए, बाद में हम दूसरों के कैरेक्टर के बारे में बात कर सकते हैं। किसी के कैरेक्टर पे हम उंगली नहीं उठा सकते। द सिंगल मेल इज नॉट क्रिटिसाइज इन दिस वे। अगर हाँ लड़का है, जैसे मैंने अभी बताया, लड़का है तो वहाँ पे उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे घर में भी या कभी हमारे आसपास भी अगर लड़की शादी की उम्र की हो गई है, तो फिर समाज वाले, आजू बाजू वाले, आसपास वाले बोलना शुरू कर देते, या किसी उसके साथ उसको शादी करना है, अगर उसने लव मैरिज किया है तो भी समाज वाले बोलते हैं, लव मैरिज नहीं किया है तो भी समाज वाले बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि शादी के बाद अगर लड़की आती है, तो सबसे पहले उसका जो आजू बाजू वाले होते हैं, आसपास वाले होते हैं, कितने दिन रुकने वाले, मीन्स उसका सही में कौन सा घर होता है, उसका माँ बाप का घर या उसका पति का घर। लोगों को बहुत, हम बोलते हैं ना, थोडक्यात म्हणायचं असेल तर पंचायत, एम आय राईट, असं सगळं काहीतरी असतं, एम आय राईट, असं Yes, ma'am. असतं ना, की हां तू किती दिवस थांबणार आहेस का वगैरे, तुम्हाला काय करायचंय, तुम्ही ठेवणार आहेत का तिला? नाही ना, तुम्ही तुमच्या घरात तिला ठेवणार बरोबर आहेत आहे. का? ठेवणार आहेत का? नहीं। सो नहीं. दैट इज द थिंग, कि ऐसा हर बार उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। ओके, आगे का देखते हैं, सेक्स अर्ज एंड द सिंगल वुमन। द मैन इज नॉट कंडेम्ड फॉर सेटिस्फाइंग अर्ज बिफोर द मैरिज, even outside his marital life. But if a female does so, she made guilty for it. Okay, when we are talking about the character, if the man has so many affairs before marriage or after marriage, no one is going to tell him or no one is going to prevent him. But whenever we are talking about the character of the female, we always criticize her if she has one affair, if she has many affairs before marriage, though we characterize her or we criticize her character. Am I right? Am I right? So whenever we are getting marriage, Yes, ma'am. okay, we are ready for marriage. That is the commitment between male and female. You have to be loyal. ऐसा किसने बोला है भाई कि हाँ लड़कियां अफेयर नहीं हो सकती, लड़कियों के शादी के बाद अफेयर नहीं हो सकते? तो मर्द को किसने आज़ादी दे दी? घर में बीवी और बाहर बाहर बहुत सारी, ऐसा किसने बताया? तो आपका खुद का कैरेक्टर ठीक है
तो कमिटमेंट जब हम शादी के लिए करते हैं, आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसके साथ कमिटमेंट करते हैं तो उसके साथ लॉयल रहना ये हमारी जिम्मेदारी है। आपको समझ में आना चाहिए, नहीं ये सही नहीं, ये गलत है। ऐसे बहुत सारे केसेस दिखाई देते हैं कि घर में बीवी है फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। तो ये मीन्स दैट मैन इज नॉट सेटिस्फाइड विथ वन, कि उसका खुद का कैरेक्टर नहीं है, वो किसी एक से सेटिस्फाइड नहीं है। तो कभी कभी ये भी सोचिए कि अगर उसमें जितना आप ज़्यादा रिलेशन बनाते हैं, HIV एड्स हो गया तो बचाने वाला भी कोई नहीं होगा, इतना ज़रूर ख्याल रखिए। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज नहीं, एक पॉइंट रह गया। दिस प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सीरियस फॉर द करियर वुमेन आर लाइकली टू मैरी लेट। हाँ, अगर कोई महिला अपना करियर बनाना चाहती है, सेटल होना चाहती है, तो वो उसका जो शादी हो जाती है वो थोड़ा सा देर से करते हैं, तो उसमें भी उसको कैरेक्टराइज बताया जाता है, उसको हम इस तरह से देखते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज अनवेड मदर्स। अनवेड मदर्स मीन्स जो जिसका शादी नहीं है फिर भी वो माँ बनती है, तो उसका क्या देखते हैं। सोसाइटी एक्सपेक्ट द वीमेन नॉट एंजॉय द प्लेजर ऑफ पेरेंटहुड without getting married. So society expect that the women are not enjoying the pleasure of parenthood without getting married, or without getting married if she becomes mother, she is criticized. She is criticized. Okay, nowadays in the recent time we don't have this method in our Indian society. Live in relationship, if you have heard this term, live in relationship, do you understand? Do you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, what ma'am. Yes, is ma'am. what is that? What is that? What is that? That girl and boy living together, just like husband and wife, but they don't have the proper label of husband and wife. Okay, they don't have a right to say him as a husband, to say her as a wife. They live together. This is not our method. Our method is different. Our culture is different. एक बार शादी हो गई तो उसको सालों तक निभाना है। ऐसा लाइफ पार्टनर हमको कोई भी लाइफ पार्टनर मिला हो, ये हमारा संस्कृति है। ये बाहर का संस्कृति है, लिव इन रिलेशनशिप। इसमें हम बोलते हैं कि नुकसान किसका है, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किसका है, नुकसान किसका होता है। लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं जो लड़का लड़कियां, उसका नुकसान किसका है, बताएंगे मुझे, किसका होता है, किसका होता लड़के है? का। लड़के का। लड़की का। दोनों का ही होता है। लड़के का ज़्यादा नुकसान होता है। बाद में शादी कौन करेगा उससे, वो तो रह चुकी है किसी और के साथ। वो किसी के साथ बहुत बातें रातें गुजार चुकी है, उसके साथ कौन रहेगा। तो इस तरह से कुछ सोचा जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। ओके, then yet there are unwed mothers such as mother look upon the down, कि अगर किसी अनवेड मदर को, फॉर एग्जाम्पल जैसे महाभारत, आपने देखे महाभारत, देखिए शायद महाभारत में कुंती का जो Yes, पात्र ma'am. था, Yes, तो ma'am. उनको सिर्फ जो वो जो जब वो अनमैरिड थी तो उनको ऐसा लगा कि ये मंत्र मुझे भगवान ने दिए तो वो सही में वो अप्लाई होते हैं क्या। उन्होंने मंत्र बोला, उनके हाथ में बच्चा था। ओके, ऐसा कुछ था उस टाइम में। वो क्यों, वो द्वापर युग था, तो उस टाइम में ऐसा सब कुछ होता था, तो उनको भी उस टाइम में लोगों के डर से उन्होंने क्या किया, वो बच्चा नदी में बहा दिया। एमराइट, ऐसा कुछ आपने देखा होगा, ऐसा हुआ था। हाँ Yes, मैम। ma'am. हाँ, तो Yes, ma'am. वो समाज के डर से, समाज के डर से लोग क्या बोलेंगे, ये बच्चा किसका है। अगर उसने बोला भी तो समाज वाले उसका सुनने के लिए रेडी है क्या, लोग उसको मानेंगे क्या, लोग उसको सुनेंगे क्या। इसके डर से उन्होंने जो बच्चा था, फिर वो बच्चा, उसको नाम क्या दिया, वो सूर्यपुत्र था, उसको नाम क्या दिया गया था, कर्ण नाम था उसका, कर्ण। कर्ण नाम था, उसको बहा दिया। फिर बाद में जैसे एंड नज़दीक आता है तभी उनको पता चलता है कि ये बेटा मेरा ही है, तब पांडवों को पता चलता है कि मेरे बड़े भाई थे। तो ऐसे कुछ, तो उसके बाद में युधिष्ठिर वो श्राप देते उनको कि आज के बाद कोई भी जो महिला होगी तो उसके पेट में इतनी
बातें नहीं टिकेगी। उन्होंने ये बात छुपा के रखी ना सबसे, कुंती ने ये बात छुपा के रखी थी, राइट, सबसे छुपा के रखी थी, Yes, सिर्फ ma'am. कृष्णा जानते हाँ, थे। मैम। तो उन्होंने श्राप दिया कि अभी इसके बाद महिला के, कोई भी महिला होगी उसके पेट में कोई भी बात टिकने वाली नहीं है। तो सिर्फ जो महिलाओं का जो नेचर होता है, कुछ भी बात हो तो जल्दी से वो बता देती है।